Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। It is such a privilege for us to be together with you in praise and worship. और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के नाम में एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। Worship is a beautiful word. आराधना करना एक बहुत खूबसूरत शब्द है। We get closest to God when we worship Him. हम परमेश्वर के सबसे करीब तब होते हैं जब हम खुदा की आराधना कर रहे होते हैं। As we worship Him, beloved, प्रियो, आज हम जब उसकी इबादत करते हैं, let's worship Him in spirit and truth. हम दिल से आत्मा और सच्चाई से खुदा की इबादत करें। One more time, God has given us to honor Him through our lives. एक और बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसको महिमा दें। So let's start it. आइए हम शुरू करें। धन्यवाद करो प्रभु तेरे। Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद, हम सब मिलके प्रभु का धन्यवाद करें प्रियो। Thank you Jesus. मुंह खोल के, हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करें क्योंकि वो हमारे मध्य में है। Thank you Jesus. Thank you Lord. We are not at all able to come before in the presence of God, beloved. हम इस लायक नहीं हैं कि परमेश्वर के सामने आए, लेकिन खुदा ने यह अनुग्रह हमको दिया कि हम उसकी महिमा कर सकें। Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Be glorified. Be glorified in the heavens.
time in the presence of the Lord. This is the time God has given us, beloved, to honor Him, to glorify His name. Let's not belittle this time. Let's honor Him. अपना मुंह खोल के महिमा करके प्रभु को खुश करें अपने जीवन के द्वारा. This is the time, God. Thank you, Jesus, Lord. Let's honor Him. Let's behold His face. Let's tell Him that how beautiful our God is. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Love you, Lord, for who you are, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Lord, we are thankful to you for this time, Lord. इस समय के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद. Thank you, Lord, for giving us another chance to come in your presence. एक और मौका आपने अपनी उपस्थिति में दिया, इसके लिए We धन्यवाद. never deserved you, Lord. प्रभु हम कभी आपके योग्य बनी We नहीं never सकते. deserved your grace and love, प्रभु Father. आपके अनुग्रह और प्रेम को हम योग्य बन ही नहीं सकते. But you gave us chance to come before you. मगर ये मौका आपने दिया कि हम आपके सम्मुख आ सके. You accepted us through your Son Jesus Christ, प्रभु अपने Lord. बेटे यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें We ग्रहण love किया. you, Lord. प्रभु हम आपसे We प्रेम. just love you for who you प्रभु are. हम जैसे आप हैं, प्रभु आप जो हैं इसलिए हम आपसे प्रेम करते हैं. In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से. Amen. आमीन. Praise the Lord. जय मसीह की. It's a beautiful time to know, to go deeper into the presence of God. बहुत खूबसूरत समय है कि हम परमेश्वर के प्रेम में और गहरे चले जाएं. It's been 2 months, almost 2 months that we are worshiping every day. और लगभग 2 महीने हो गए कि हम हर रोज आराधना कर रहे हैं. We can see countless page on FB that people are worshiping hour after another. You know, they are worshiping the Lord. और हम भिन्न प्रकार के पेजों को देखते हैं और घंटे घंटे 12-12 घंटे 2400 घंटे लोग लगातार वर्शिप करते हैं, आराधना कर रहे हैं. Some are singing, some are praising, some are giving sermons. Together they are worshiping the Lord. कुछ गा रहे हैं, कुछ स्तुति कर रहे हैं, कुछ प्रचार कर रहे हैं और मिल के प्रभु की इबादत कर रहे हैं. It is so beautiful. कितना खूबसूरत है. I was pondering on the worship. और मैं आराधना के बारे में मनन कर रही थी. Sometimes we feel that just singing the songs or, you know, praising the Lord is worship. कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ गाना गाना या खुदा की स्तुति करने से हम आराधना करते हैं. And we feel that if we sing beautifully, that is the, you know, skillfully, like Bible also says that we need to sing skillfully before the Lord. We think that this is worship. और कई बार हमको लगता है कि हम जैसे किस योग्यता से हम गाने गाते हैं या किस सीख से हम गाते हैं, हमको लगता है उसके द्वारा नापा जाता है कि हमारी आराधना कितनी अच्छी है. जबकि वचन में लिखा है कि हम योग्यता से अपनी जो हमारी जो दक्षता है उसके द्वारा हम खुदा की महिमा करें. Beloved, singing is a beautiful part of worship. गाना गाना बहुत खूबसूरत एक भाग है आराधना का. If we read in Isaiah, we can see that, you know, Sarabs, they keep singing before the Lord and they say holy, 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 and they come in the presence of यदि हम God. यशायाह 6 में पढ़े तो उसमें हम देखते हैं कि साराब जो एक प्रकार के स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर के सम्मुख लगातार खड़े रहते हैं और वो कहते हैं पवित्र 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 यहोवा परमेश्वर. But one more aspect of worship is मगर एक और अगर नजरिए से हम आराधना को देखें, that is sacrifice. वो है कि हम अपना बलिदान खुदा को दें. That is offering ourselves before God. ये है कि हम अपने आप को खुदा के सामने अर्पित कर दें. When Sarabs were worshiping the Lord, जब साराफ जो थे यहोवा की स्तुति गा रहे थे, आराधना कर रहे थे, the voice of the Lord was heard, who will go for me? और उधर परमेश्वर का यूं स्वर निकला कि कौन मेरे ले जाएगा. And the answer was, I will go, Lord, send me. और जो यशाया है वो बोलता है प्रभु मैं जाऊंगा, मुझे भेज. Unless that voice comes from within, that Lord, I am ready to go for you wherever you will send it. जब तक हमारे अंदर से ये स्वर नहीं निकलता कि प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे भेज जहाँ तुझे भेजना है, Then the worship is not complete. तब तक हमारी जो आराधना है वो पूर्ण नहीं हो पाती. So you must bear in mind that God is not obligated to accept everything that we give Him. तो हमको ये ध्यान रखना जरूरी है कि परमेश्वर बाध्य नहीं है कि जो भी हम खुदा को अर्पित करें परमेश्वर उसको ग्रहण करे. Not all that parades under the guise of worship is actually a worship. हर चीज जो आराधना के भेष में आती है वो आराधना होना अनिवार्य नहीं है. So what is worship then? तो आराधना क्या है? Definition comes from the heart. और जो इसकी परिभाषा है वो दिल से निकलती है. You know, it is very much associated with the heart of God. और जो हम देख सकते हैं आराधना परमेश्वर के दिल के बहुत करीब होती है.
So worship should be experienced rather than explained. इसका मतलब कि हम आराधना का एहसास करना चाहिए, ज्यादा कि हम उसको सिखा नहीं सकते, हम उसका एहसास करते हैं। It's like falling in love with the Lord. और आराधना ऐसा है कि हम परमेश्वर के प्रेम में और गहरे चले जाएं। It's like becoming one with the Lord. ऐसा हो कि हम परमेश्वर के साथ एक हो जाएं। And when we hear the word from the Lord, और खुदा का स्वर जब निकले who will go for me? कि कौन मेरे ले जाएगा, We just lift our hands and say, Lord, here am I am willing to go. हम तुरंत अपना हाथ ऊपर करके बोले कि प्रभु मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। It's an intimate time that we spend in the presence of और God. एक बहुत करीबी का समय होता है जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खुदा के साथ बिताते हैं। Worship is quietly admiring, adoring your Savior. और आराधना है कि हम शांति से यहोवा के वैभव को निहारें। Beloved, unless we do it, that is not worship. जब तक हम ऐसा नहीं करते तब तक हम आराधना नहीं कर रहे। In the 4th chapter of Genesis, we come across a character called Cain. और चौथे अध्याय जो उत्पत्ति के चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि इधर एक इंसान है जिसका नाम काइन है। We learn for the first time that anything that we offer to God is actually not worship. और इधर हम पहली बार देखते हैं कि हर चीज जो हम खुदा को अर्पित करते हैं जरूरी नहीं है कि वो आराधना हो, It is not acceptable before God. जरूरी नहीं है कि खुदा उसको ग्रहण करे। So what elements should be avoided if we want to please तो God? ऐसे क्या तत्व हैं जो हम परमेश्वर के सामने ना दें ताकि हमारी जो आराधना है वो अस्वीकार ना हो। In our worship, three things are important. First is attitude, second is action, third is ascription. पहली बात जो सबसे जरूरी है कि हमारा कैसा व्यवहार है वो हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि हम उस व्यवहार से किन कामों को करते हैं वो जरूरी है। तीसरी बात कि हम किस तरीके से किस नाप से खुदा के साथ जुड़े हैं वो हमको देखना जरूरी है। Beloved, God rejected Cain's worship. और जब हम उत्पत्ति उसके चौथे अध्याय में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने काइन के बलिदान को अस्वीकार किया। Like I said, attitude is the foremost and first thing that we need to come before God. और जो जैसे मैंने पहले बोला कि हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, किस मनसा से हम खुदा के सामने आ रही है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। If our attitude is not right, God will not accept our अगर हम worship. सही मनसा से यहोवा के सामने नहीं आते तो परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण नहीं करेगा। Cain possessed an attitude of self. और जो काइन था वो अपने आप में भरा हुआ था He was concerned to promote himself before और God. उसने सोचा कि मैं अपने आप को बढ़ावा दूंगा। Beloved, at first glance it seems that he came with all his offering, the first fruits he came with, and it seems so beautiful before और God. जब हम एकदम से अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितना अच्छा है कि उसने अपने अच्छी फसल परमेश्वर को दी और परमेश्वर को तो बलिदान ही चढ़ाया। Cain was busy prospering his own idea than to see how it could please God. मगर अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि वो अपने विचारों को फैला रहा था, अपनी बातों को फैलाने में ज्यादा तत्पर था, ना कि ये कि मैं खुदा की इच्छा के अनुसार चलूं। He attempted to avoid responsibility even for his sin. और जब उसने पाप भी किया तो भी उसका जिम्मेदारी लेना उसने सही नहीं समझा। He tried to provide his own justification. और वो खुद का ही न्याय कह रहा था, खुद को बचा रहा था इन चीजों से। He tried to enter in God's presence through his own attempts. और प्रियो जब वो खुदा की उपस्थिति में आ रहा था तो अपने कर्मों के अनुसार खुद के जतन लगा के आ रहा था। What he said when God asked him, "Where is your brother?" और उसने क्या बोला जब उसके भाई के लिए परमेश्वर ने पूछा, "Am I the keeper of my brother?" क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? Jealousy took over in his life. उसके जीवन में जलन उसको नियंत्रित करने लगी। He couldn't give the first fruits in the manner that he needed to. और जिस प्रकार उसको अपनी पहली भेंट जो पहला अपने जीवन में प्रथम स्थान खुदा को देना था वैसा वो नहीं दे पाया। He was failed to see that he cannot give justification to God. और वो इस चीज में भी चूक गया कि वो जाने कि मैं अपने आप को परमेश्वर से नहीं छुपा सकता। Beloved, he was filled with bitterness in his life. प्रियो अपने जीवन में काइन जो था वो बहुत ही ज्यादा कड़वाहट से जूझ रहा था। And bitterness comes between God and us whenever
we are having some envy against a brother. और कब हम परमेश्वर के सामने कड़वे हो जाते हैं, जब हम अपने आपस के भाई बहनों के बीच में सही रिश्ते नहीं रख There is पाते। no way an individual can worship the Lord if he carries bitterness against his brother. हम एक इंसान जो है, हम परमेश्वर की इबादत तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने लोगों के आसपास में परस्पर हम कड़वाहट रखें और ऐसी चीजों को बांध के खुद के जीवन में That's रखें। why Matthew 5:23 and 24, Jesus warned, if you have anything against your brother, leave it there, and before you come to the altar, get settled with your brother, and then come to the altar. और इसलिए मत्ती उसके 5 उसके 23 और 24 में यूँ लिखा है कि यदि तुम भेंट चढ़ाने वाले हो और तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के लिए कुछ गलत हो और तुम लोग के मतभेद हो, तो पहले उस भेंट को उस जगह पे ही छोड़ के पहले अपनी बातों को सुलझाओ और फिर यहोवा को भेंट देना। Cain's worship was unacceptable because of his actions. और क्यों काइन की जो भेंट थी परमेश्वर ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसके जो काम थे, जिस तरीके से वो अपने जीवन को जीता था, वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा था। So much so that he killed his own brother, beloved. और यहाँ तक कि उसने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। Cain was mastered by bitterness and envy. और उसका जीवन में कड़वाहट और जलन जो थी उसको कंट्रोल करती थी और नियंत्रित करती थी। Therefore, his worship was unacceptable. और इसलिए उसकी जो आराधना थी प्रियो परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की। I want to ask you a question today. आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। What has mastered you? आपके जीवन में आज क्या चीज है जो आपको नियंत्रित करती है? What is the most valuable thing in your life to you? आज आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? Where does your mind goes when you are free to think? और जब आप आराम के समय में होते हैं तो क्या चीज होती है जो आप सोच रहे होते हैं? What thing gives you the greatest pleasure in your life? और आपके जीवन में जो सबसे बड़ा सुख आपको किस चीज से मिलता है? Sometimes we play genie with the Lord. कभी कभी हम परमेश्वर को जिन जैसे इस्तेमाल करने की सोचते We हैं। think God is a secretary and He is at a disposal. हमको लगता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक सेक्रेटरी जैसा है और जो हम बोले परमेश्वर हमारे लिए करे। Beloved, God is sovereign. प्रियो, परमेश्वर जो है सर्वोपरि है। God is holy. परमेश्वर पवित्र है। God is righteous. परमेश्वर धर्मी है। He is gloriously awesome. परमेश्वर महिमान्वित है और आश्चर्य के कर्म करने वाला है। So we need to be careful when we come to the Lord. तो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम बहुत ध्यान पूर्वक आए। The Word of God says, वचन कहता है be careful when you come in the presence of कि God. हम खबरदार जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो The Lord is in heaven and we are on earth. कि तुम जो हो तुम पृथ्वी पे हो और परमेश्वर तुम्हारा सिंहासन पे स्वर्ग में है। We need to realize that our God is a sovereign God. हमको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वोपरि है, सबसे We ऊंचा है। cannot just offer anything to the हम Lord. कुछ भी खुदा को नहीं दे सकते। So we have received a kingdom that cannot be shaken. तो अब हमें जो मिला है एक ऐसा राज्य मिला है जो कभी टल नहीं सकता। So let's be thankful. तो आइए हम धन्यवादित होएं। So let's worship God acceptably with reverence and awe. तो ऐसे हम खुदा की हमदो सताइश करें जिससे परमेश्वर को आदर मिले, ऐसी आराधना करें जो परमेश्वर को ग्रहण हो सके। We cannot force God to accept us. और हम परमेश्वर को फोर्स नहीं कर सकते कि तू हमारी आराधना को, हमारी भेंट को ग्रहण कर। Beloved, it's a privilege that we get in the Lord. बल्कि ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। It is possible that you might be singing all day long and yet you are unacceptable हो before सकता ये God. मुमकिन है कि आप पूरा दिन खुदा की इबादत करते हो मगर फिर भी परमेश्वर ने उसको ग्रहण नहीं किया हो। Cain was the firstborn. काइन जो था वो पहलौटा था। He gave the first fruits, उसने पहलौटा चीजें दी but his worship was not acceptable. मगर उसकी आराधना परमेश्वर को ग्रहण What a नहीं हुई। sad story. और कितनी दुखद बात है। God told him that you will run from cities to cities. और परमेश्वर ने उसको ऐसा बोला कि तुम नगर से नगर भागते रहोगे You'll be a vagabond. और तुम एक बंजारे जैसे बन जाओगे।
and he was pleading with God for his mercy. और परमेश्वर की करुणा के लिए वो परमेश्वर से मांगता रहा, परमेश्वर के पीछे पड़ा। I believe as we worship him, मैं सोचती हूँ कि जब हम खुदा की इबादत करते it हैं, is important to give ourselves completely to him. बहुत जरूरी है कि हम पूर्णतया खुदा को अपने आप को दे दें। Let's not direct him, let him direct us. हम परमेश्वर को आदेश ना दें, परमेश्वर के आदेशों को हम सुने, For the word of God says क्योंकि वचन कहता है in Psalms 32:8, भजन संहिता उसका 32:8 I will instruct you and teach you the way that you have. कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा जिस मार्ग पे चलना है, I will counsel you and I will take care of you. और मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। Amen. Amen. This is the essence of worship. और प्रियो, यही जो है आराधना का सार है, इबादत का सार है। Let's commit ourselves to God. अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें। God has given this beautiful time to come before him. बहुत ही खूबसूरत समय है जो खुदा ने हमको दिया है। Amen. Amen. So let's honor him with what we have, with all that we have. तो जो भी हमारे जीवन में है, परमेश्वर से बोले, प्रभु जो कुछ मुझ में है मैं तेरी स्तुति उससे करूंगा। It would be very sad that we come to the Lord and yet we reject him. कितनी दुखद बात होगी कि हम खुदा की उपस्थिति में आए और फिर भी अस्वीकार हो जाएं। If we have anything against our brother, अगर हमारे भाई बंधुओं के तरफ हमारे जीवन में कोई भी कड़वाहट है, आज beloved, lay down your sacrifices right now. आज ही अपनी भेंटों को अलग रखते हैं। Get counseled with your brother और first, अपने रिश्तों को सही करें and then come to the Lord, और फिर खुदा को भेंट चढ़ाएं। and then God will accept your और worship. परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरी भेंट को स्वीकार करूंगा। Let's come to the throne of God. आइए खुदा के सिंहासन पे आइए। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते
में समर्पित करें। यशाया को बहुत हजारों साल पहले एक आवाज सुनाई दी, जब वो परमेश्वर के सिंहासन के पास गया, उसको एक आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरे लिए जाएगा? और उसने परमेश्वर की आवाज सुन के कहा, मैं हूँ परमेश्वर, मैं जाऊंगा। Let this be a call, beloved. Let this be a voice for today, that when God asks, who will go? Let's say without any hesitation, here am I, Lord, I will go. Thank you, Jesus, Lord. क्या हम सब मिलके इस गीत को गाएं परमेश्वर के सामने? प्रियो, यदि आप वो व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के लिए जाना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा के प्रभु से कहिए, हमारे साथ मिलके गाइए। Lord, we are thankful to you for this time, Lord. धन्यवाद यीशु इस समय के लिए। Lord, you have honored us. You have given us this time to come into your presence, ये Lord. आदर आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सके। Lord Jesus, help us to be fearful unto you, Lord. डरते और कांपते हुए आपकी उपस्थिति में आए। Help us not to take your name in vain, Jesus. प्रभु, व्यर्थ में आपका नाम न ले प्रभु। Lord, help us to realize that we are coming before the master of the universe. ये सच्चाई जान ले कि हम दुनिया के सृष्टिकर्ता के सामने आते हैं। Lord, help us to repent and come before you, Lord. प्रभु, अपने मार्गों से हम मुड़ जाएं और प्रभु आपके सामने आएं। Help us to be that voice that reflects you when we go प्रभु, हम around. वो आवाज बने प्रभु जिसमें आप झलकते हो। Lord, we thankful to you, Lord. धन्यवाद इस समय के लिए। We are grateful to you for giving us this प्रभु, time. आभारी है इस समय के लिए आपको Thank you, Lord, for giving us access through your Son Jesus Christ. कि to your आपने throne. अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम आपकी तरफ पहुंच सकते हैं। यीशु We love you, Lord. प्रभु, हम आपसे We प्रेम are at your feet, Lord. प्रभु, आपके चरणों में And आते we हैं say that, Lord, we love you. और आपसे बोलते खुदा मैं आपसे प्यार In Jesus' name we praise you. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। God has given us this beautiful time, beloved, हाँ, परमेश्वर ने हमको एक बहुत खूबसूरत समय दिया है that we could offer ourselves to the Lord Himself. कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने एक भेंट के जैसे दे पाए। It's a beautiful time to come before Him, कितना खूबसूरत समय है कि हम खुदा के सामने आ सके, but scary too. मगर हम डरते हुए भी आए, Let's be fearful when we come to the house of the डरते और Lord, कांपते हुए खुदा की उपस्थिति में आए, because we cannot play with the Lord. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं May कर God सकते। bless us परमेश्वर हम सबको आपको आशीष and the दे people who are listening to us. और जो लोग हमको सुन रहे हैं, May God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष We दे। love you in the name of Jesus. हम आपसे यीशु मसीह के नाम से प्रेम करते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।